لیکن واقعی اتنی بڑی مجلس میں، اتنی بڑی محفل میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ حاضرین، بہت ہی غم و افسوس کے ساتھ میری نظر ایک ایسی پرسنالٹی کے اوپر جا کر ٹھہرتی ہے جن کا نام گرامی ہے ڈاکٹر محمد شفیع پورکر صاحب۔ معذرت چاہتا ہوں، میں لفظ المرحوم استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ جو ادبی پرسنالٹیز ہوتی ہے، جو عالم ہے یا کوئی دانشور ہے یا کوئی دانشور ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی مصنف ہے، وہ کبھی مرتا نہیں، وہ صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد شفیع پورکر صاحب میری اپنی نظروں میں زندہ ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ، واقعی آج ان کی کمی تو یہاں ضرور محسوس ہو رہی ہے، اس کمی کی یاد دہانی کو باضابطہ طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ شاہین ہائی اسکول محفلہ کے پرنسپل اور بہت سارے تعلیمی اور سماجی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اسٹیٹ لیول ریسورس پرسن میرے استاد ڈاکٹر مبشر جمادار صاحب کو نہایت ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر محمد شفیع پورکر صاحب کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کی اس نہایت اہم تقریب کے ہمارے ذمہ داران کوکن کی آواز اور رائے گڑھ آواز، ان دونوں اخبار کے مدیر اعلیٰ محترم دلدار پورکر صاحب جو میرے کلاس میٹ بھی ہیں، اور آج کی اس مجلس کے صدر مکرم جو کوکن کی ایک مایاناز شخصیت ہے، عالی جناب مفتی رفیق پورکر صاحب، اسی طرح کوکن کی آواز کے اس سفر کی اہم شخصیات میں محترم جناب محمد حنیف پورکر صاحب، نیز ان کے سبھی معاونین، آج کی اس مجلس میں رونق افروز خطۂ کوکن کے وہ عظیم ستارے جن کی وجہ سے کوکن کی ادبی محفل اور صحافت کا میدان ایک طرح سے روشن ہے۔ یہاں پر میرے لیے بڑا دقیق مسئلہ ہے کہ یہاں موجود جتنی بھی شخصیات ہیں میں ان کا نام کس طرح سے لوں اور کس طرح سے اس کی ترتیب بناؤں، کیونکہ کبھی کبھی درجہ بندی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ شخصیات کی اپنی ایک طرح سے پہچان اور ان کے کارنامے، ان کی درجہ بندی کرنا بہت مشکل ہے، اور اسی تناظر میں کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک گل ہے یہاں، ہر ایک گل ہے یہاں پر گلاب کے مانند، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ لہذا آپ جمی حاضرین کا آج کی اس مجلس میں استقبال کرتے ہوئے آئیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آواز گروپ کی جانب سے مجھ پر یہاں دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے آج کے ہمارے اناؤنسر الطاف ناٹوسکر صاحب نے کہا کہ ادب اور صحافت سے جڑی ہوئی شخصیات اور علم و تعلم سے جڑی ہوئی جو شخصیات ہوتی ہیں انہیں ہم مرحوم نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح خطۂ کوکن کی ایک عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر آپ سبھی کی طرف سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ اس وقت کی جو حالت اور کیفیت ہماری ہے کہ ہماری نگاہیں اس شخص کو ڈھونڈ رہی ہے جو ہمارے درمیان ہے مگر نظر نہیں آتا۔ آج کی کیفیت کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں منزلیں ہوگی
हजारों कारवां होंगे, निगाहें तुमको ढूंढेंगी, न जाने तुम कहाँ होगे, न जाने तुम कहाँ होगे। और उस शख्स की तरफ से एक तरह से हमें जो जवाब मिलता है वो यही मिलता है कि ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ऐसी शख्सियत जो हमारे दरमियान हमेशा रहेगी। आज भले ही हमारे दरमियान हमारे साथ नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोकन की सरजमीन हमेशा से जरखीज रही है और यहाँ इल्म अदब और सहाफत के मैदान के कई शहसवार कोकन की सरजमीन ने न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी दे दिए हैं, जिनकी अगर फहरिस्त यहाँ पर हम पेश करना चाहेंगे तो एक ज़ख़ीम से किताब बन सकती है जिस पर बहुत काम किया गया है। आज भी ऐसे कई शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं जो हमारे कोकन के एक तरह से मायानाज असासे। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सच है जो जाते हैं, ये सच है जो जाते हैं नहीं लौट के आते, कुछ लोग मगर दिल से भुलाए नहीं जाते, कुछ लोग मगर दिल से भुलाए नहीं जाते। ऐसी एक शख्सियत, अजीम शख्सियत जिसने उर्दू अदब के लिए, उर्दू सहाफत के लिए और साथ ही साथ मराठी की सहाफत के लिए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसका तज़किरा अगर मैं करना भी चाहूँ तो अल्फाज में मेरे लिए बहुत दकीक है। और इसीलिए जब रात तकरीबन 10:30 या 9:30 बजे के करीब मेरे अजीज साथी दिलदार पुरकर साहब जो मेरे क्लासमेट भी हैं, इनका फोन आया कि सर आपको जो है वो वालिद मोहतरम के लिए खराज अकीदत पेश करना है। उस वक्त जब मैं तहरीर के लिए बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि अल्फाज और इसी तरह से एहसासात और जज्बात, इसके तरातुम को काबू में करना बहुत मुश्किल होगा और ऐसे वक्त में साथ साथ मौजूद है शायद बड़ा काम करती है। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि उनकी शख्सियत को मंजूम अंदाज में आपके सामने पेश करते हुए हम सभी मिलकर उन्हें खराज अकीदत पेश करें, क्योंकि यहाँ वक्त बहुत कम है और बहुत अहम शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम में सबसे अहम जो जुज आज के प्रोग्राम का है वो यही है कि वो अजीम शख्सियत जिसने अपना जिंदगी का मुकम्मल सरमाया उर्दू को बना दिया, उर्दू की सहाफत को बना दिया और अपने आप को इस कौम के लिए वक्त कर दिया, हम उन्हें खराज अकीदत पेश करें। आज वो दिन है जब यहाँ पर उर्दू अदब की तकरीबन कोकन की अहम तरीन शख्सियत मौजूद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके बावजूद सोना सोना आंगन है और प्यासा प्यासा ये मन है, सोना सोना आंगन है और प्यासा प्यासा ये मन है। तुम हो कहाँ ऐ जाने वफा, तुम हो कहाँ ऐ जाने वफा, पूछ रहा ये दर्पण है, पूछ रहा ये दर्पण है। आज की कैफियत कुछ इस तरह से है कि मोहतरम मोहम्मद शफी पुरकर साहब जिन्होंने हमारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना कर दिया और आज दिलदार पुरकर साहब ने ये मजलिस ऐसी सजाई कि जहाँ पर तकरीबन हमारे उर्दू अदब की मुख्तलिफ जगहों के, वो रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो या सिंधुदुर्ग, इसी तरह से मुंबई और थाना की शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो कमी का एहसास हो रहा है वो हमारे मौसिम, वो हमारे मुरब्बी आली जनाब मोहम्मद शफी पुरकर साहब, इनकी खिदमत में ये कताब पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, बड़ा करम तवज्जो दें। ख्याल बन के रह गया, सवाल बन के रह गया, ख्याल बन के रह गया, सवाल बन के रह गया, चला गया जहां से वो मिसाल बन के रह गया, चला गया जहां से वो मिसाल बन के रह गया, ख्याल बन के रह गया, सवाल बन के रह गया, चला गया जहां से वो मिसाल बन के रह गया। अमल का पासदार था, बड़ा वफाशुआर था, अमल का पासदार था, बड़ा वफाशुआर था। उरूज यूं मिला उसे कमाल बन के रह गया, उरूज यूं मिला उसे कमाल बन के रह गया, चला गया जहां से वो मिसाल बन के रह गया।
जिस शख्स के ताल्लुक से मुझे यहाँ कहने के लिए कहा गया है, उनके मुतालिक जब लिखना चाह रहा था तो बरजस्ता ये शेर मेरे जहन में आ गया कि ज़बान ये किस तरह हो बरसरे निधत सराते, ज़बान ये किस तरह हो बरसरे निधत सराते, चमन में हर जगह बिखरी हुई है दास्तान तेरी, चमन में हर जगह बिखरी हुई है दास्तान तेरी। मौसूफ की शख्सियत के कई पहलू हैं, जिसमें से 10 पहलू जो हैं उसको मैं आपके सामने बिल्कुल मुख्तसरन पेश करना चाहूंगा कि मौसूफ एक ऐसी शख्सियत रही है कि जो इस्लामी तहजीब और सकाफत के आमीन रहे, जो बेहतरीन सहाफ़ी जिन्हें दोनों जबानों से यकसा लगाओ, जो कौमी यकजहती और हुकुल वतनी के हमेशा अलमबरदार रहे। इसी तरह तालीम और फरोग तालीम के लिए हमेशा कोशा रहे और इल्म की कदर करते रहे और उलमा की कदरदान रहे। अच्छे मुआशरे की तश्कील और तामीर के लिए एक मेमार की हैसियत से हम मोहम्मद शफी बोरकर को कभी नहीं भूल सकते। बिरादर वतन में इस्लाम की तालीमात और दावत इस्लाम के काम में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया माशाअल्लाह। इसी तरह से अंजुमन दरमंदान, इसके कयाम के लिए खास तौर पे बहसीत बानी और सरपरस्त उनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। आज अंजुमन दरमंदान का तालीमी कारवां जो पूरे कोकन में, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोकन के बाहर भी पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है, इसकी रूह रवां हमारे मोहम्मद शफी बोरकर रहमहुल्लाह रहे हैं। इसी तरह से मजमून निगारों और कलमकारों के वो मुहसिन रहे। यहाँ जितने भी कलमकार मौजूद हैं वो उनके रहीने मिन्नत है, जिसमें खाकसार भी मौजूद है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज हमारे दरमियान तस्लीम अंसारी मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैं मसलाई के ताल्लुक से उन्हें खराज अकीदत देने की बात आई थी और उस तकरीब का जो है इनेकाद करना था, उस वक्त तस्लीम अंसारी साहब की जो है एक तरह से निगाहों ने मेरा इंतखाब किया था और उस वक्त शफी बोरकर साहब ने भरोसा किया था। और मैं समझता हूँ कि कोकन की आवाज का एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो पनवेल में मुनक्किद किया गया था और उस वक्त एक ऐसी तजल्ली हमने देखी कि मैं मसलाई साहब बिस्तर अदालत में थे, लेकिन वहां से वो व्हील चेयर में बैठकर प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो इस तरह से ये एक तरह से जज्बा होता है जो किसी भी इंसान में एक जिंदगी की खूब पैदा कर देता है। वो हमारे अली जनाब मोहतरम मौसूफ जो आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन हमारी निगाहें आज भी उनको ढूंढती है, मोहम्मद शफी बोरकर साहब में थी। मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के तारुफ के ताल्लुक से उन्होंने जो एक तरह से तारीख साज काम किया, ये बल्कि मैं कहूँगा कि कोकन ही नहीं पूरे हिंदुस्तान इसको कभी नहीं भुला सकता। इसके अलावा मौसूफ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी खानगी जो रही उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में पूरा किया और इसीलिए हमारे सामने एक अजीम शख्सियत मुफ्ती रफीक बोरकर यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से दिलदार बोरकर साहब ने अपने तारुफ में कहा कि वालिद मोहतरम ने उन्हें हिदायत दी कि बेहतर होगा कि अपने मनसब को छोड़ दें, आप अपने जॉब को छोड़ दे जो गवर्नमेंट जॉब था। आज वो गवर्नमेंट जॉब में होते तो लाख से ज्यादा तनख्वाह होती उनकी, लेकिन खिदमत के जज्बे से सरशार उनके वालिद मोहतरम ने तरगीब दिलाई कि आप जो है वो अपने फील्ड को बदल दीजिए और सहाफत की तरफ में आइए, क्योंकि आपकी मुझे जरूरत है। और दिलदार बोरकर साहब ने अपने वालिद मोहतरम के हुक्म को सर्वजश तस्लीम करते हुए आज बहुत ही अच्छे अंदाज में उनकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। इसी तरह से मोहम्मद हनीफ बोरकर साहब यहाँ मौजूद हैं। मौसूफ भले ही सऊदी अरब में बरसर रोजगार है, लेकिन कोकन की आवाज, रायगढ़ से आवाज, अंजुमन दरबंदान और दीगर तमाम मामलात में हमेशा अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह से वो सपोर्ट करते रहे हैं। इसके अलावा इनकी पूरी, मैं एक तरह से मैं तो कहूँगा कि पूरी की पूरी पीढ़ी जो है ये इसी काम में लगी हुई है। अल्लाह ताला इनके काम को कबूल करे और हमारे मोहम्मद शफी बोरकर साहब ने जो ख्वाब देखा है, अल्लाह ताला उस ख्वाब को एक तरह से उसकी ताबीर जो है वो बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने पेश करे। आज की ये मजलिस यही कहती है कि मोहम्मद शफी बोरकर से मुतालिक सारे कोकन को रोशनी देकर, सारे कोकन को रोशनी देकर गुल हुआ एक चिराग कोकन का, गुल हुआ एक चिराग कोकन का। आइए खिराजे अकीदत के तौर पे मंजूर नजराना पेश करने जा रहा हूँ।
آئی خبر تو ہوش ہمارے نہیں رہے، آئی خبر تو ہوش ہمارے نہیں رہے۔ عید کا دن تھا، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ہم عید کی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن پھولکر صاحب کے اہل خانہ کے لیے ایک ایسی غم کی کڑی تھی، ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا کہ محمد شفیع پھولکر صاحب نہیں رہے۔ آئی خبر تو ہوش ہمارے نہیں رہے، محمد شفیع پھولکر دنیا میں نہ رہے، محمد شفیع پھولکر دنیا میں نہ رہے۔ کوکن کا خاص و عام ہوا غم سے سوگوار، کوکن کا خاص و عام ہوا غم سے سوگوار، جس نے سنا نگاہ ہوئی اس کی اشک بار، جس نے سنا نگاہ ہوئی اس کی اشک بار۔ کی آواز، یہ دونوں اخبار جو ہے یہ باقاعدہ ہمارے گھر پہ آتا رہتا ہے، اور آج یہ 20واں سال ہے کہ ہم رائے گڑھ کوکن کی آواز جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے، الحمدللہ۔ استاد مراٹھی کا اور اردو کا شہسوار، تعاون رہا دونوں زبانوں سے انہیں پیار۔ توجہ چاہوں گا کہ مسجد سے پیار اور مدارس کے تھے، مسجد سے پیار اور مدارس سے تھا لگاؤ، مسجد سے پیار اور مدارس سے تھا لگاؤ، خدمت میں دین حق کے رہا، خدمت میں دین حق کے مسلسل رہا جھکاؤ، خدمت میں دین حق کے مسلسل رہا جھکاؤ، اور پیرانہ سالی اور علالت کے باوجود، پیرانہ سالی اور علالت کے باوجود فعال عمر بھر رہا موصوف کا وجود، فعال عمر بھر رہا موصوف کا وجود۔ کوکن کی سرزمین کو ہمیشہ رہے گا ناز، کوکن کی سرزمین کو ہمیشہ رہے گا ناز۔ پیدا ہوا ہمارے یہاں صاحب انداز، پیدا ہوا ہمارے یہاں صاحب انداز۔ آخر میں دعا کریں ہم سبھی، پروردگار سن لے مبشر کی یہ دعا، پروردگار سن لے مبشر کی یہ دعا، بخشش ہو ان کی جنت فردوس ہو عطا، بخشش ہو ان کی جنت فردوس ہو عطا۔ اصل میں یہ آتے آتے تحریر کر دی گئی ہے، اس میں یہاں پہ چونکہ صاحب ذوق و فن موجود ہیں اور جن کو شاعری سے شغف بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک طرح سے ایسا نقطہ ہوگا جس پہ آپ کو تنقید کے لیے پورا میدان کھلا ملے گا، لیکن یہاں پر جذبات کا تعلق تنقید سے نہیں ہوتا۔ میں نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس بات کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ موصوف کی زندگی جو ہے ایک طرح سے مسلسل قومی خدمت میں لگی رہی، اور انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم ان کا احسان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس عطا کرے، اور اسی طرح سے ان کے جتنے بھی لبائقین ہیں اور جتنے بھی ان کے ایک طرح سے اہل خانہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور کوکن کی آواز جو ان کی تحریک ہے اس کو تا دم حیات قائم و دائم رکھے۔ آپ جمیع حاضرین نے مشتاق صاحب کو سنا اور خاص طور سے منتظمین نے مجھے موقع دیا، لہٰذا سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ چونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، آواز محسوس ہو رہی ہوگی آپ کی، لیکن دلدار صاحب اور مفتی صاحب کی محبت کے آگے ہمیں سر بکم کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ جمیع حاضرین نے ایک طرح سے اس موقع پر مجھے سنا، اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر مبشر جمعدار صاحب۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے خراج عقیدت، حاضرین کرام آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر محمد شفیع پھولکر صاحب آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن ان کی نسبت ہم تمام کے ذہنوں میں قائم ہے، ان کی نسبت ہم تمام کے ذہنوں میں قائم ہے۔ ان فاصلوں کے دشت میں رہبر وہی ہے، ان فاصلوں کے دشت میں رہبر وہی ہے، جس کی نگاہ دیکھ لے صدیوں کے پار بھی۔ ایسی وہ شخصیت تھی۔ آئیے نہایت ادب کے ساتھ کوکن کی آواز کو صحافت کے ساتھ ساتھ اردو کے زیور سے آراستہ کرنے والی شخصیت میرے استاد محترم تسنیم انصاری صاحب کا تعارف اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں محترم ابو شاہی صاحب کو۔ حاضرین گرامی ہمارے درمیان بہت سے مہمانان بھی موجود ہیں، ہم ان کا اوپن سیشن کے دوران جو ہے ان کا تعارف ضرور لیں گے، اور چونکہ ہمارا آج کا یہ جو نشست ہے وہ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تاخیر سے جاری ہے، اس لیے میں تمام مقررین سے نہایت ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ اپنے اذہان کو، اپنے تخیلات کو، ریشمی تصورات کو نہایت اختصار کے ساتھ مختصر کلام کریں۔ محترم ابو شاہی صاحب۔
معزز سامعین کرام، مفتی صاحب، اس ناچیز کو تسنیم انصاری کے استاد گرامی تسنیم انصاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صدا دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تسنیم انصاری یوں تو میرے ادبی رہنما اور رہبر ہیں، لیکن ہماری دوستی جو تھی اس کے تعلق سے میں کیا بیان کروں، جیسے دو جسم اور ایک جان تھی۔ آپ کی کمی مجھے آخری سانس تک محسوس ہوتی رہے گی۔ یوں تو زندگی میں میں نے بہت کچھ کھویا، میرے اپنوں کی رخصتی پر میں جتنا غمزدہ نہیں ہوا اتنا استاد تسنیم انصاری کے جانے سے یقین مانیے میں اتنا غمزدہ ہوں۔ اور آج ان کی غیر موجودگی میں مجھے خراج عقیدت میری روح کو پیش کرنے کے لیے صدا دی گئی ہے۔ یوں تو اس لاک ڈاؤن کے درمیان کئی ایسے بے شمار ہمارے ادبی ستارے، کئی فانوس گل ہوئے، جن میں مخصوص ہمارے محترم ڈاکٹر شفیع پرکر صاحب، ہمارے ساتھی نوید مختار صاحب، ساحل شیوی صاحب اور کئی ایسے ہمارے ساتھی چلے گئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے اور بہشت بری میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہو آپ کو۔ میں خراج عقیدت کے طور پر منظوم پیش کرنے سے پہلے تسنیم انصاری کے چند شعر آپ کے سامنے، دو تین شعر جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ تسنیم انصاری نے فرمایا، میرے وجود میں 100 آفتاب روشن ہیں، میرے وجود میں 100 آفتاب روشن ہیں، میں بجھ گیا تو ضیائیں کہاں سے لاؤ گے۔ اور ایک جگہ فرمایا انہوں نے، نقطے کے سوا، دیکھیے دور اندیشی ان کی، استاد شاعر ہوتا ہے، نقطے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نقطے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، میں دیر سے دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اور حال ہی میں جب میرے دوست میرے استاد نہیں رہے تو ان کی پوری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی ہے، ان کا کلام میرے پاس ہے، میں ترتیب دے رہا ہوں۔ یہ غزل کا شعر ابھی 1-2 روز قبل میری نظر سے گزرا، میں اتار رہا تھا بیاض پر۔ دیکھیے شعر یوں ہے، غزل اور نظم شاعری میں، بھائی میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن مختصراً بتاتا چلوں کہ غزل میں ایک شعر میں مکمل بات، مکمل مضمون بیان کیا جاتا ہے غزل کے ایک شعر میں۔ اور میرے ساتھی شعراء تو جانتے ہیں نظم کا بھی اپنا ایک مقام ہے، نظم کی بھی حیثیت کم نہیں ہے۔ نظم میں شاعر کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو مکمل طور پر حرف بہ حرف تفصیل سے بیان کرے۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد آیا جب وہ شعر پر میری نگاہ گئی، نظام سر میری کتاب جامع صفات میں میری پہلی حمد ہے، مختصر سے حمد ہے، وہ پہلے پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کا شعر میں آپ کو سناؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے وہ حمد ہے میری، پتھر کا کیڑا اور میں، پتھر کا کیڑا اور میں دونوں ہی مصروف ثنا، پتھر کا کیڑا اور میں دونوں ہی مصروف ثنا، پتھر کے کیڑے کو عطا کی سبز پتی اور میری نوکے زبان پر شعر جاری کر دیا، الحمد رب العالمین۔ اب دیکھیے استادی تسنیم انصاری نے ایک شعر میں وہی بات آج 10-15 سال کے بعد وہ میرے سامنے آیا، وہ مبہوت واضح ہو گیا کہ میری نظم کا مکمل
मफहूम इस एक शेर में आया है। वो शेर यूं है निजाम सर, आ गई मिल गई पत्थर के सीने में उसे अपनी ग़िज़ा। तस्लीम साहब बता रहे, मिल गई पत्थर के सीने में उसे अपनी ग़िज़ा, एक कीड़े के लिए परवरदिगारी आ गई। हजरत, अब मैं मंजूम के तौर पर चंद अपने अशार पेश कर रहा हूँ अपने दोस्त, अपने उस्ताद की नज़र। तेरे बाद तस्लीम कैसे भरेगा, तेरे बाद तस्लीम कैसे भरेगा, अदब में जो पैदा खलाब हो गया है। तेरे बाद तस्लीम कैसे भरेगा, अदब में जो पैदा खलाब हो गया है। न राहत है दिल को न तस्कीन जां है, न राहत है दिल को न तस्कीन जां है। इलाही ये क्या माजरा हो गया है। गालिब ने कहा था, इसलिए गालिब ने कहा था या इलाही ये माजरा क्या है, लेकिन बरजस्ता वो माजरे वाली बात आ गई, इसलिए मैंने वो शेर रख दिया है। न राहत है दिल को न तस्कीन जां है, इलाही ये क्या माजरा हो गया है। और आखिरी मतलब मक्ता है, तेरी याद में इस कदर फिर रहा है, तेरी याद में इस कदर फिर रहा है, वो शाहिद तेरा सर फिरा हो गया है। अब एक मुकम्मल नज़्म मंजूर पेश कर रहा हूं। हम साज हम नवा मेरा हमसर नहीं रहा, हम साज हम नवा मेरा हमसर नहीं रहा। चंद रोज मेरे पास वो क्यों कर नहीं रहा, चंद रोज मेरे पास वो क्यों कर नहीं रहा। मतलब सानिया शम्मा नहीं रही, रुखे अनवर नहीं रहा, शम्मा नहीं रही, रुखे अनवर नहीं रहा। महफिल में तेरे जैसा सुखनवर नहीं रहा, महफिल में तेरे जैसा सुखनवर नहीं रहा। बतौर खासी शेर, कहने को धड़कता हुआ ये धड़ तो है मगर, मंजर साहब, कहने को धड़कता हुआ ये धड़ तो है मगर, अफसोस मेरे धड़ पे मेरा सर नहीं रहा, अफसोस मेरे धड़ पे मेरा सर नहीं रहा। और गुलशन की क्यारियों में ये कैसा सबूत है, गुलशन की क्यारियों में एक ऐसा सबूत है। सहने चमन में हाय गुले तर नहीं रहा, सहने चमन में हाय गुले तर नहीं रहा। शेर देखिए, पत्थर की मूरतों ने भी एक साथ कह दिया, इसार का खुलूस का पैकर नहीं रहा, इसार का खुलूस का पैकर नहीं रहा। मक्का पेश कर रहा हूं। तिश्ना नबी के साथ ही जीना पड़ेगा, तिश्ना नबी के साथ ही जीना पड़ेगा। अब शाहिद हमारे पास समंदर नहीं रहा, शाहिद हमारे पास समंदर नहीं रहा। बहुत खुश शाहिद हमारे पास समंदर नहीं रहा। आइए कोकन की आवाज से मुंसलिक हाशिम चौगले साहब की खिदमत में खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं निहायत अदब के साथ दावत देता हूँ अब्दुल रऊफ खतीब साहब को। मोहतरम अब्दुल रऊफ खतीब साहब। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए उर्दू से रग़बत रखने वाले, कोकण की आवाज़ को चाहने वाले तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इससे कबल हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब यानी शफीक पुरकर साहब और मेरे भी उस्ताद मोहतरम तस्लीम अंसारी साहब को खराज अक़ीदत पेश किया गया। डॉक्टर मुबश्शिर जमादार और अबू शाहिद साहब ने बेहतरीन अल्फाज में अपनी शायरी से, अपने अल्फाजों से पिरोते हुए एक बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश किया। मैं माजरत चाहता हूं कि मेरे पास
अशारों का जखेरा है, लेकिन मैं शायर नहीं। आप ही के तो शेर पढ़ के पढ़े हुए सैयद साहब। लेकिन पटेल साहब कहते हैं, हमारे दोस्त थे इकबाल पटेल, चूंकि जिनको खराज अकीदत पेश करने जा रहा हूं मैं, कोई बड़ा मवाद नहीं है मेरे पास, आते थे कहा गया, लेकिन मैं उनको पढ़ता था, मैं उनको समझता था, आप भी समझते थे, आप भी पढ़ते थे उनको, और उनकी सोच, उनकी फिक्र जो थी, उसे में एहसास होता था कौम और मिल्लत का ये एक फर्द है। जी हाँ जनाब, हाशम चोगले साहब, हाशम चोगले साहब, इकबाल पटेल साहब ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा था, मरहूम इकबाल पटेल साहब, कि दुनिया खुशी में गम को भुलाती चली गई, दुनिया खुशी में गम को भुलाती चली गई, अपना फरेबादी खाती चली गई। अगर ऐसा एहसास को हम यहाँ पर खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे तो मैं समझता हूं कि महफिल पूरी नहीं आती रह सकती। लिहाजा मैं जनाब हाशम चोगले जो रोहा से ताल्लुक रखते थे, समाजी मुरासलात उनके कोकन की आवाज और इनकलाब में शाया होते थे वक्तन फक्तन, आपने पढ़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और दीगर उनके मुरासले भी मैंने बहुत सारे पढ़े, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। और उनके बारे में आज जो है उनके दामाद वारिस थोड़ी भी कुछ कहने वाले, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से वो आ नहीं सके। जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर दी, मैंने जो दो अल्फाज मेरे पास थे मैं आपके सामने पेश किया, बड़ा काम है उनका, और ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। कोकन की आवाज और आवाज ग्रुप की तरफ से मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, और आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम हासिल करे, अता करे। एक शेर के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि मुकर्रिरीन यहाँ पर आ चुके हैं, और उसके बाद जो प्रोग्राम अपना शुरू होगा कि वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। जज़ाकल्लाह मुहतरम अब्दुल रऊफ खतीब साहब। हाज़रीन गिरामी, हमारे मजलिस में मोहतरम मकाम सलीम अलवारी साहब, मोहतरमा तबस्सुम नाटकर साहिबा, मंजूर नाटकर साहब, मंजर मुल्लानी साहब, मुफ्ती फैयाज बरमारे साहब, कई सारे हमारे मेहमानान मौजूद है, लेकिन इनका मुकम्मल तारुफ जो है ओपन सेशन जो हमारे एजेंडे का हिस्सा है उस दौरान इनका तारुफ पेश किया जाएगा। आइए निहायत अदब के साथ खिराज अकीदत पेश करने के लिए मोहतरम साहिब शेवी साहब के खिराज अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूं मंजर ख़यामी साहब को। मोहतरम मंजर ख़यामी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं फौजी बन के आया था, लेकिन ये दिलदार फैमिली इतनी पूरी पुरकर फैमिली इतनी पूरी के पूरी पूरनपुर है, ये किसी फौजी को भी सिपह सलार बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ देर के लिए सिपह सलारी दी गई, और पहले से तय नहीं था कि मैं साहिब शेर पे खिराज अकीदत पेश करूँ। बैठ हाल के एक शेर से इब्तदा करता हूं कि जहां तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जहां तक देखिए, वो भी मौलाना थे, मौलाना अतार हुसैन हाली, जहां तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें इल्म से नवाज कर अशरफुल मखलूकात बनाया ताकि उसकी शनाख्त हो जाए। साहिब शेरी के ताल्लुक से जहां तक बात करनी है, मैं आपको बता दूं 20 अक्टूबर के उर्दू सफर शुभाए में जिस अखबार का सरपरस्त भी होंगे, मैंने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया था, और ये ऐसी शख्सियत थी हमारे कोकन में कि इतनी बड़ी शख्सियत अदब के ताल्लुक से मेरी निगाह में कोई नहीं है, क्योंकि वह हमारे जहत थे, हम असनाफ थे। हम तो 2-3 असनाफ पे शायरी करते हैं या जो भी है हमारा काम चला लेते हैं अदब में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सिम छोड़ी नहीं।
कम से कम मैंने उस मजमून में 55 असनाफ गिनवाए, फिर भी 2-4 रह गए मजमून छपने के बाद। तो वो हम असनाफ शायर थे। और हमारे डॉक्टर साहब की जहां तक बात है, जैसे नाज़िमा मुशायरा ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्हें मरहूम नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखिए जो मरहूम है उसको मरहूम ही कहेंगे, लेकिन वो जिंदा जावेद रहते हैं, लेकिन उनको मकबूलियत का नाम दे सकते हैं आप। वो जिस शोबे में काम करके जाता है, जब भी कोई बशर किस शोबे में अच्छा काम करके जाता है, अच्छे अखलाक के साथ जाता है, तो वो शोबे में मकबूल रहता है, मरहूम होके भी मकबूल होता है। तो मरहूम और मकबूल अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, ताकि मरहूम लफ्ज के भी कोई माना है तो उसको हम तर्क नहीं कर सकते। तो मरहूम तो मरहूम है, लेकिन वो मरहूम मकबूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शफी फुरकर साहब मुझे अपने बेटे की तरह, उनके तो लगे बेटे, लेकिन मैं जब 4 महीने उनके पास आता था इब्तिदाई आयाम में कोकन की आवाज में, तो बहुत सारे मेरे नाती साथी से भी वो मशवरे लेते थे। उसका एक वाकया बयान करूं ताकि बात दलील के साथ हो। एक बार मुरुड में फसाद हुआ था, तो मैंने सुर्खी लगाई थी कि मुरुड में दोबारा फसाद। तो हमारे मुफ्ती साहब श्रीवर्धन से मसला बस से देखे, उन्होंने हेडिंग देखे अपनी अखबार की कि मुरुड में दोबारा फसाद। ये तो मैंने सुना ही नहीं, फौरन आए और एक अखबार खरीद के बस में बैठ गए। जब वो वहां आए दस्तरखा पे हम बैठे तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मंजूर साहब इस सुर्खी पे तो मैंने अखबार खरीदा, जब पढ़ा तो पहला ही फसाद था। तो मतलब अखबार जो चलता है वो सुर्खी पे चलता है। आप जैसे हंसी बाग में जाइए या किसी मेले में जाइए, उसमें झलकता है चेहरे से, अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सुर्खी से अखबार चलता है। और जहां तक अदब का ताल्लुक है, डॉक्टर शफी फुरकर साहब को ख्याजा हकीकत पेश करना है, तस्लीम से ले लिया शाही शेरू को, तो मैं दीनदारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन दुनिया की हर जबान में, क्योंकि अखबार का ताल्लुक अदब से है, मुफ्ती साहब तवज्जो दी, शायद मेरी बात तस्लीम हो जाए कि अदब का ताल्लुक किसी भी अखबार का ताल्लुक किसी भी जबान का अखबार हो, उसका ताल्लुक अदब से है। और आप पूरी दुनिया में देखिए कि ख्याजा हकीकत पेश करने का तरीका आसान ये होता है कि वही मुरब्बत जुमले इस्तेमाल करने से बेहतर एक आसान तरीका यह होता है कि हम जरा नम हो जाए, उन मरहूमीन के सामने जरा नम हो जाए, यानी एक 10 सेकंड 15 सेकंड अगर खड़े होकर उन्हें ख्याजा हकीकत पेश करे तो तमाम जुमले उसी में आ जाते हैं। क्या ये काम हम आप कर सकते हैं? खड़े होकर उनको ख्याजा हकीकत पेश करते सिर्फ 10 सेकंड। किसी भी जबान में आप देखिए ये रिवाज चलता है। मैं दीनदारी से बात कर रहा हूं, अदब के ताल्लुक से बात कर रहा हूं। तो ये हम उनके सामने ना हो गए, पूरा अकीदत के तमाम अल्फाज उसी में आ गए, तमाम अकीदत के अल्फाज उसी में आ गए। बैठिए, बस 1 सेकंड में काफी होता है। यानी हम उनके सामने बिल्कुल नम हो जाते हैं, यानी हम उनकी काबिलियत को समझते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, मरने के बाद में उनकी ताज़ीम करते हैं। और मुझे इख्तिसार का हुक्म दिया गया था, मैं 2-3 बातें फिर भी रखना चाहता हूँ अखबार के ताल्लुक से, शायद फिर कभी मौका मिले ना मिले। एक तो बात मैंने कहा कि अखबार चलता है सुर्खी से। दूसरी बात, आज मीडिया इस कदर फास्ट है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पेज में दर्ज शुरू होती है, 1 सेकंड के अंदर खबर आती है कि दर्ज शुरू हुआ है, और फिर ये भी न्यूज आती है कि हर 1 मिनट के बाद आती है दर्ज हो जाए। तो इतना फास्ट मीडिया है, तो रोज की खबरें जो हमारे पास ताजा खबरें फौरन पहुंच जाती है। हमारा जो अखबार है, हमारे कोकन का वाहिद एक अखबार है जो हमें बहुत ही अजीज है, वो वीकली अखबार है, हफ्ते रोजा अखबार है। तो उसमें हम मकामी कोई खबरें ताजा ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तरतीब बनानी पड़ेगी। आज मैं बाहर से महसूस करता हूँ, वो बात मैं सामने रख देता हूँ। इख्तियार तो इदारे के जिम्मेदारान का काम है, उनको इख्तियार है जो चाहे फैसला करे, लेकिन राय दे सकते हैं। मशवरे इसके लिए नहीं दूंगा कि मशवरे मशाइख के बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं राय ये दे रहा हूं कि जो बाहर जो बात करती है कि भाई ये किसी एक मसलब से अखबार जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसमें जो है दीनी मज़ामीन ज्यादा हो, तो हमें मसलब से किसी जोड़ना है। हमें दीन का काम अगर अखबार के जरिए होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अखबार जो है वो अखबार, उसका नाम ही खबर की जमा अखबार, तो हमारे मकामी खबरें उसमें हो। और इस दौर में अगर कोई अखबार चलता है
तो आदत जैसे आर्मी मजामी हो, तनकीदी मजामी हो, तकलीफी मजामी हो या तहकीकी मजामी हो, जोग्राफियाई मजामी हो, सकाफती मजामी हो, साइंसी मजामी हो, कुछ न कुछ लोगों को नया मिले, उस जबान के जरिए कुछ न कुछ लोगों को पढ़ने में नया मिल जाए, इसी तलाश में लोग अखबार खरीदते, रसाई खरीदते। तो ये चीज अगर हम देंगे तो इंशाल्लाह ये अखबार जो है और तरक्की पर भी होगा। दूसरी बात जो है, हमारे बहुत ही मेरे आजीज है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नासमझी हो जाती है कि उन्होंने कहा था कि भाई मेरी नजर में है, कोई शायद तनकीद करे। तो मैं आपको बता दूं, कोकण की तारीख कब्रिस्तान लखनऊ इन्होंने बड़ा अच्छा कब्रिस्तान कोकण इस्तेमाल किया। तो सलाम करता हूँ, बात सलाम करता हूँ आपको, क्योंकि एक जगह में गया था तो बड़ी दिलचस्प बात है। एक शायर ने तंज किया कि आप कहाँ से आए? मुझे भी गया था, मैं शायर का नाम भी नहीं बता पाता, शोरा का नाम नहीं, सभी आवड़ की शोरा पे। फिर कि कोकण तो अभी पसमाना है। मैंने कहा तेरा ज़हन खराब है, शोहरत अलग चीज, फन अलग चीज है, तेरे को जो शोहरत मिली उसी के बात करता है। जहाँ तो जिस इलाके का है वहां से उर्दू निकाला गया, निकाला हुआ उसका, निकाली गई उसका निकाला हुआ, तो संभाला दिया है तो कोकण ले दिया आज के तारीख पर। फिर हमारे कोकण में, हमारे मरहूम में एक मोहब्बा के मुशायरे में उन्होंने कहा कि हम आए तो यहाँ अदब का माहौल बन गया। हमारे कोकण की तारीख है, अदब के बगैर सब कुछ हो सकता है, कुरान का मंजूर तर्जुमा नहीं हो सकता, लेकिन हमारी तारीख है, अकायद अपनी जगह पर, मसलक अपनी जगह पर, मेरा मसलक नहीं, लेकिन जिनके मज़ार पर हजारों लोग आज जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं, उन्होंने कई बरस पहले मखदूम माहिमी ने कुरान का मंजूर तर्जुमा किया है। पहला कुरान का तर्जुमा है कोकण का, ये तारीख है कोकण का। कोकण आदत में अभी से नहीं है, पहले से। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मर्द हजरात थे, अभी तो खवातीन भी हमारे माशाल्लाह मंजूर नाकर साहिबा भी है। बैठ गए तो मुझे मुख्तसर का इशारा दिया गया था, फिराज आकिदत तो हम खड़े होकर नम होकर उनको फिराज आकिदत पेश किया। मैं उनके इशारे पर अमल करते हुए अपनी बात नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि मंजर साहब ने कोकण की आवाज की तरक्की और सहाफती दुनिया की तरक्की के ताल्लुक से जो राय पेश की है, इंशाअल्लाह इसके लिए मोहतरम मुलमकाम सलीम अलवारे साहब की मौजूदगी और सरपरस्ती में एक ओपन सेशन का इनेकाद किया गया है। इंशाअल्लाह ताला सर आपकी बातों को जरूर वहां पर असर नौ दोहराया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। आइए हाजिरीन, खिराज अकीदत का सिलसिला तो काफी दराज है। कोरोना वायरस की वजह से या कुछ और अमराज की वजह से हमारे बीच में से कुछ ऐसी हस्तियां जो आज मौजूद नहीं है, हजरत मौलाना अमानुल्लाह गुरूर साहब, लायक तकलीद मोहतमिम जामिया हुसैनिया श्रीवर्धन, आज हमारे दरमियान नहीं है। हम आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी तरह से कोकण की आवाज से मुंसलिक समाजी खिदमतगार हुसैन का खतीब साहब, जिनकी खिदमत में आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसी तरह मोहतरम आकिल हुरजुर साहब, चेयरमैन IMT स्कूल पुरावली, उनकी खिदमत में भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। जिस तरह से मशहूर मारूफ शायर मुख्तार आदिल साहब, जिनका ताल्लुक सरजमीन तुरील से है, उनकी खिदमत में भी आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। और कई सारे ऐसे हस्तियां हैं, वक्त की किल्लत की वजह से उनके आसमाए गिरामी शायद आपके सामने ना आए हो। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम और मुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए, और उनके जितने सारे काम हैं, समाजी हो, अदबी हो, तिब्बी हो, जितने सारे काम हैं, उन तमाम कामों को सिर्फ अपनी रजा की खातिर अल्लाह कबूल फरमाए। आइए अंजुमन दर्दमन स्कूल महाड से, जिनका काफी ताल्लुक रहा साइंस के माहिर उस्ताद मोहतरम शब्बीर शेख साहब, जिनकी खिदमत में भी आवाज ग्रुप की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं।